शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे कि दीदी बीसीए के ऊपर वीडियो बनाओ। सो गाइस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू ऑल। बेसिकली इट्स अ पॉडकास्ट विद अनंत। सो लेट मी वेलकम अनंत ऑन माय चैनल। उनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बीसीए किया एंड उसके बाद आफ्टर डूइंग सम ट्रांजेक्शन ही इज़ राइट नाउ वर्किंग विद गूगल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इनकी जर्नी से। यू विल गेट टू नो एंड टू एंड कि अगर आप बीसीए कर रहे हो एंड आपने एमसीए नहीं किया है और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, देन व्हाट रोड मैप यू शुड फॉलो एंड किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर अपनी ड्रीम जॉब क्रैक कर सकते हो। सो हाय अनंत, हाउ आर यू डूइंग? Hi Shivangi, I'm doing good. What about you? Yeah, I'm doing great. So Anant, can you briefly introduce yourself to my audience? Yeah, sure. So, hi everyone, I am Anant Kaushik and currently I'm working with Google from last 2 years, and overall I have like 5 years of experience in the like software engineering industry. And just after the college I like did a BCA, and after that I like gone into like off campus and joined a company called Quantis Technologies in Noida, and I worked there for 2 years. Then I moved to Pune. So there is another company called HelpShift. So I worked there for around 1 year, and then from last 2 years I'm working with Google as a like backend engineer at L4 level. ग्रेट। अनंत, जब आपने ग्रेजुएशन किया होगा उस टाइम भी बीटेक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। सो लाइक व्हाई डिड यू, अगर इंटरेस्ट था आपको कंप्यूटर्स में, सो व्हाई डिड यू डिसाइड टू गो फॉर बीसीए एंड नॉट बीटेक? So actually it's a like a little interesting story. So I don't have the preference, like I can't do BTech at that point of time because like in the starting in 10th, so we all have to choose like in between commerce and science, right? And उस टाइम पे मेरे को लगता था कि everyone was going for the science, so let's try like something new. So at that point of time I decided to go for commerce with mathematics, and I wanted to like do a CA at that point of time. I don't know why still why I like took that decision. So I like took commerce with mathematics, and then after like within an year मेरे को realize हुआ कि this is not my thing. I got bored really like soon, and within 1 year I decided कि ये नहीं कर सकता हूँ मैं. So it's and from there in between 11 and 12 I visited my brother who was doing BTech for in the vacation. So वहाँ पर he was preparing for some like interesting project in his last year. So मेरे को वो देखकर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि how things are going in computer science and how people are like doing it. So for that I think 1 or 2 week I spent a lot of time with my brother to understand ki what is going on and how we like build the application on all that stuff. So from there it like my computer science journey started. So मैं वापस आया after the vacation, and in 12th half of the time I was exploring computer science stuff. I was exploring programming languages and learning about like HTML, CSS and all that stuff with my studies. And in between I decided कि I will go for the computer science only because वो interest develop हो गया था. So I decided to quit like CA वाला thing, and my family again supported me there. Then from that point of time मैंने like I had only 2 options क्योंकि BTech अब आप BC कॉमर्स के बाद नहीं कर सकते हो. So I had only 2 options, BCA and BSc. So I compared both of them कि pros and cons क्या है, and then I decided कि I will go for the BCA one. And then I like tried searching for कि कौन क्या क्या options है मेरे पे, and I like got 2 options. Like मेरा एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ था, then I got into the IP University, and since it was near to my hometown I decided to go with my college in IP University. Now that you know कि अब जॉब मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया है and you are targeting to crack your dream company or upskill yourself, then Bosscoder is here to help you out with its guided, structured and personalized mentorship program. इनके प्रोग्राम्स को आप बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. सो इफ़ यू हैव लेस देन 6 years ऑफ एक्सपीरियंस देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट देयर ट्रांसफॉर्मर प्रोग्राम, एंड अगर आपको 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस है देन डू चेक आउट देयर इवॉल्व प्रोग्राम. एज पार्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स आप क्या क्या सीख सकते हो वो आप डिटेल में अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो. अब बात करें अगर करिकुलम की, तो इन्होंने जो करिकुलम बनाया है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड है और एंड टू एंड सारे टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से वो सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं. अब अगर लर्निंग की बात करें, सो यू विल नॉट ओनली लर्न थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करना है
That also you will learn by implementing real life projects on your own. Now interview में along with learning skills and projects और भी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत important होती हैं. So Boss Coder will provide you sessions on that also, like resume building, LinkedIn profile optimization and mock interviews. And the best part is you will also get job assistance as they have partnered with 100 plus top tech companies. And they have 1000 plus alumnus who are placed in top tech companies like Google, Microsoft, Amazon, etc. कुछ सक्सेस स्टोरीज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो. अब अगर मेंटोर्स और इंस्ट्रक्टर्स की बात करें, सो दे आर ऑल्सो फ्रॉम द टॉप टेक कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एटसेट्रा. सो दे विल प्रोवाइड यू रियली गुड गाइडेंस. एंड आप इनके पोर्टल पर जाकर 3 मेंटोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं बाय चेकिंग देयर बैकग्राउंड एंड देयर लिंक्डइन प्रोफाइल. प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो. ये सारे ही कोर्सेज पर इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन की वजह से ढेर सारे डिस्काउंट्स चल रहे हैं. सो लाइक दे आर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन ऑल देयर प्रोग्राम्स. सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू चेक आउट देयर कोर्सेज. And let's say you get enrolled and you started studying in the course and in between आपको कोर्स समझ में नहीं आ रहा है, then they have 14 days refund policy as well. So click on the link in the description, enter your details and request for a call back and get to know more about the program and get guided by the experts. Link मैं description और pinned comment में दे रही हूँ. Don't forget to check it out. सो आपने BCA के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया था या इन जनरल बस ऐसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था? ओके, सो एंट्रेंस एग्जाम होता है IP यूनिवर्सिटी का. आई फॉरगॉट द नेम क्या होता है. सो आई गेव दैट जनरल एग्जाम एंड फॉर द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आई डोंट थिंक देयर वाज एनी एग्जाम. इट वाज जस्ट यू हैव टू अप्लाई एंड विद द लाइक 12th मार्क्स एंड ऑल दैट स्टफ यू कैन गेट शॉर्टलिस्टेड देयर. सो अनंत, जब भी आपने डिसाइड किया BCA करने का, सो वर यू अवेयर ऑफ द करियर ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर BCA फॉर यू? यस, सो बेसिकली जब मैंने डिसाइड किया था तो आई नो कि कंप्यूटर साइंस जाना है, क्योंकि आई नो मैं लाइक कॉमर्स कर रहा था. देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर द कंप्यूटर साइंस. तो आई नो कि मेरे को क्या चाहिए. सो आई नो कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो प्रॉपर फील्ड होती है कोडिंग वाली, उसमें मेरे को जाना है. सो व्हाट आई नो इज इट्स डिफिकल्ट, बट फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स, लाइक जब से मैं अपने भैया से मिला था, ही वॉज काइंड ऑफ अ मेंटर फॉर मी. सो उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइड किया एंड ही मेक श्योर कि आई स्टेड ऑन द ट्रैक. एंड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फील्ड होता है उसके लिए डिग्री उतना मैटर नहीं करती, लोग कहते हैं. सो आई हैड लाइक प्रॉपर गोल, सो इट वॉज पॉसिबल फॉर मी. आई नेवर थॉट कि सॉफ्टवेयर जो प्रॉपर डेवलपर रोल होता है वो पॉसिबल नहीं है BCA के बाद. तो आई हैड दैट क्लियरिटी व्हेन आई स्टार्टेड द BCA. ओके, सो लाइक यू वर अवेयर कि आप BCA करने के बाद यू हैव टू गो इनटू द सॉफ्टवेयर डेवलपर फील्ड ओनली. Right. बट कैन यू टेल अस मोर अबाउट द रोल्स दैट आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग BCA? किन किन प्रोफाइल्स में वो जा सकते हैं? Okay, sure. So there are more like different kind of roles. So I will say कि जो हमारे कॉलेज में आती है, I can tell you about my college only because जो हम लोगों का सीन था, तो mostly opportunities is come around data analyst or the supporting role like support engineer, all that stuff. So BCA के लिए generally इस type की opportunities आती हैं on campus. But since I had like clarity कि मेरे को क्या चाहिए, so I never tried like on campus thing. I always went out for the off campus hiring. ठीक है. तो आपने अपना जॉब हंट बेसिकली स्टार्ट कैसे किया? Job hunt like I used to search on the LinkedIn कि कहाँ opportunities है, किस तरह की आती है. So I used to apply a lot on over the LinkedIn and like Naukri.com at that point of time. So I will say कि जब भी आप BCA करोगे तो आपको मेहनत काफ़ी लगेगी as compared to BTech student, क्योंकि competition initially काफ़ी ज़्यादा होता है, right? So what I used to do is I used to like cold messaging over the LinkedIn to people in the companies in which hiring is going on. तो मैं लाइक रैंडमली कंपनी पिक करता था जहाँ पे हायरिंग हो रही है, देन वहाँ पे लिंक्डइन के अंदर उस कंपनी की प्रोफाइल में जाता था एंड देन आई यूज्ड टू लाइक राइट अ मैसेज कि आई वांट टू अप्लाई एंड आई हैव these स्किल्स एंड आई थिंक आई कैन लाइक कंट्रीब्यूट टू योर टीम. सो ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ था एंड देन लकीली आफ्टर द कॉलेज आई गॉट इनटू द लाइक कंपनी कॉल्ड कोइंटेस. सो एज यू सेड कि बीटेक वालों के कंपैरिजन में BCA वालों के लिए जॉब हंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. कैन यू एलैबोरेट ऑन दिस कि एग्जैक्टली कहाँ पर डिफिकल्टीज आती हैं? श्योर. सो वन ऑफ द मेजर थिंग जो मैंने नोटिस की थी अपनी जर्नी में इज़ लाइक इनिशियली क्या होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है. सो आई रिमेंबर आई वेंट आउट टू अ कंपनी, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, तो लाइक इट्स अ बिग कंपनी नाउ. अब वहाँ पर जब मैं गया तो देयर वाज आई थिंक 2 or 3 ओपनिंग्स वर देयर और लाइक मैंने वहाँ पे 4 or 5 राउंड्स क्लियर करे एंड देयर वर 5-6 मोर पीपल देयर. एंड मेरा वो व्हेन यू गिव द इंटरव्यू ना, आपको पता होता है कि अच्छा गया है नहीं गया.
सो आई वॉज लाइक सेल्फ अवेयर, तो मेरा अच्छा भी गया था, बट when result came out तो मेरे को पता चला I was not selected, and the people who done the like BTech and have some experience were selected over me, and I got the like same feedback from the HR कि it was just unlucky for me. So these kind of like जो challenges होते हैं it was there for the BCA students. Also generally जब shortlisting होती है, क्योंकि freshers में काफ़ी ज़्यादा competitions होता है, तो it is little hard to get shortlisted first to get the interview. So वो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है to get the interview call. So वहाँ पे काफ़ी आपको मतलब preparation करनी होती है. So for that I used to like do the like cold messaging and all that stuff, cold emailing to get the interview. So मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है, बट कंपेयर टू बीटेक स्टूडेंट्स एक वो एंट्री बैरियर थोड़ा सा होता है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है. तो दैट आई कम्प्लीटली गेट इट. सो आफ्टर यू डिड योर BCA आपने ऑफ कैंपस ही अप्लाई करा, तो सो बिफोर ज्वाइनिंग गूगल आपने कितनी कंपनीज के साथ काम किया है? व्हाट वर दोज कंपनीज? I worked with 2 companies. First one was Quantis Technologies. Now I think it's acquired by Emeds. So it was a service-based company. It was in Noida. So again, since I was very active on LinkedIn ना, तो वहाँ पर मेरे को दिखा कि like Quantis Technologies is hiring, and I think it was in June. तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया and luckily I got the call. फिर it was like mostly interviews are related to DSA at that point of time. So I was prepared for it and luckily I got into that company. And वहाँ पे मैंने like 2 years काम किया as a like backend engineer, and like from a career perspective, since it was kind of a startup stuff, so I learned a lot. And then after 2 years, since like it was like good time, so I tried to switch to a product based company, because like one of my goal is to work for Google or the same level of company. So I switched to a product based company called Helpshift. So I worked there for 10 months. Again, I was in a like backend engineer there. And while I was working for Helpshift, मेरे को like interview का call आया for Google, and luckily generally like people take 2 to 3 attempts, but since I was prepared for it, the interviews, I was able to like crack it in the first go. So okay, got it. But आप क्योंकि जॉब ऑलरेडी कर रहे थे, तो how did Google came into picture all of a sudden? Did you apply, or how did that journey exactly started? Okay, so it started कि मेरे को पता था कि this is the goal. I want to like work with these kind of company. So in between मैं अप्लाई करता रहता था, like again लोगों को मैसेज करता रहता था एंड अप्लाई करता रहता था. एंड दिस वाज माय हैबिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि जब मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस DSA लॉन्ग साइड. तो वो हेल्पफुल रहा वहाँ पे. एंड आई यूज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ पोर्टल कॉल्ड इंस्टा हायर, जहाँ से मैंने अप्लाई किया था. एंड वहाँ से मेरे को कॉल आया लाइक इंस्टा हायर पे लाइक पीपल पोस्ट देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल दैट स्टफ. तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया एंड उससे मेरे को गूगल का कॉल आया था आई थिंक इन February. सो इंस्टा हायर तो अभी भी चलता है, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, काफ़ी रिलायबल प्लेटफॉर्म है. सो एनीवन सर्चिंग फॉर जॉब उनके लिए इंस्टा हायर कैन बी अ रियली गुड प्लेटफॉर्म. सो क्या अनंत उन्होंने बीटेक या एमटेक या MCA का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा था? नहीं, आई थिंक द थिंग जो लोगों को पता होनी चाहिए लाइक स्पेशली फ्रेशर्स को, कि ये जो बैरियर होता है ना, ये स्टार्टिंग में होता है व्हेन यू लुकिंग फॉर द जॉब. एक बार आप उस फील्ड में घुस जाते हो तो लाइक द डिग्री यू डन इट नेवर मैटर. तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपने BCA किया है MCA किया है. द थिंग दैट मैटर्स टू देम इज कि आपको काम आता है नहीं आता, when they are like looking for 2 to 3 years of experience. I generally tell this to my audience, like whatever degree you are pursuing, अगर किसी चीज़ को लेके पैशन है और एक बार आप उस इंडस्ट्री में फर्स्ट स्टेप ले लेते हो ना, तो जो सेकंड स्टेप और जो नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम होता है, दैट बिकम्स रियली ईजी. सो guys, you can see that Anant also started from a service based company and right now he is working with Google. So ऐसे किसी का एक बार में कहीं अच्छी जगह हो जाए, ड्रीम कंपनी में हो जाए, दैट इज़ वेरी रेयर. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, एक एक करके ही आप अचीव करते हो चीज़ों को. सो डोंट जस्ट स्टॉप, जहाँ पे मौका मिला है स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज दैट इज सम वे और द अदर गोना लेवरेज इन योर करियर. आई ऑल्सो वांट टू ऐड कपल ऑफ थिंग्स जो आपने बोला है. इट्स लाइक कि व्हाट आई हैव सीन पीपल डू इज कि जब वो फर्स्ट जॉब लग जाती है ना, दे फॉरगेट कि उनका स्टार्टिंग में ड्रीम क्या था और दे वांट टू अचीव. एंड दिस इज व्हाट आई हैव सीन विद पीपल जो मेरे साथ स्टार्टिंग में कॉलेज में थे. सो पीपल गॉट सेटल्ड इजीली. सो आई थिंक वो आपको दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर योर सेल्फ कि आपको वो वहाँ पे सेटल नहीं होना है एंड यू हैव टू लाइक वर्क फॉर योर ड्रीम. सेकेंड थिंग इज विच आई हैव लाइक एक्सपीरियंस्ड इज
कि स्टार्टिंग के जो 2 साल होते हैं ना, उसमें डोंट वरी अबाउट लाइक जॉब एंड ऑल दिस स्टफ। जहाँ पे आपको अगर अच्छा लर्निंग मिल रहा है तो फोकस ऑन दैट पार्ट, क्योंकि अगर आपको ये लर्निंग अच्छा मिल जाएगा तो इट्स ईजी टू क्रैक अदर इंटरव्यूज। सो आई विल Right. एंड इट्स लाइक जनरली फर्स्ट 2 years इज फॉर फ्रेशर्स, वहाँ पे कॉम्पिटिशन आपका ज़्यादा होता है, एंड आफ्टर 2 years आपका हाँ. कॉम्पिटिशन भी कंपेरेटिवली कम हो जाता है। सो इफ़ यू आर गुड एट, सो इट विल बी कंपेरेटिवली ईजी टू फॉर यू टू क्रैक ऑल्सो। गॉट इट, गॉट इट। सो आपने एग्जैक्टली गूगल की प्रिपरेशन कैसे करी थी? ओके, सो मैंने मोस्टली लीड कोड ही यूज़ किया था लाइक फॉर द प्रिपरेशन, बिकॉज जब भी मेरे कॉल आया था तो आई आस्क्ड कि एग्जैक्टली क्या फॉर्मेट होता है। सो दिस इज आई यूज टू डू विद लाइक एवरी इंटरव्यू जनरली। आई थिंक कुछ पीपल मिस भी कर जाते हैं, मैंने नोटिस किया है कि जब भी आप पे कॉल आए ना तो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि एग्जैक्टली किस टाइप का इंटरव्यू होगा, एग्जैक्टली आपको क्या एक्सपेक्टेड है, और सब कुछ आपको आइडिया होना चाहिए so that you can prepare accordingly. So what I used to do is कि मैं लीड कोड पे जो गूगल रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे, जब मेरे को कॉल आया कंफर्म हुआ, so I took 10 days, और 10 days में लाइक जब भी कॉल आया था उसके 10 दिन बाद मैंने अपना इंटरव्यू शेड्यूल किया था, and for those 10 days I prepared in a interview like environment. So मैंने एक problem ली, and then for 40 minutes I try to solve it and try to like think out loud. So for these kind of interview, thinking out loud is one of the like important thing. So I used to practice those things. I used to record and see myself कि कहाँ पे मैं lag कर रहा हूँ, and for the lead code part I like go for the premium subscription to so that I can prepare थोड़ा जल्दी, and for that I just short tested Google के जो भी questions थे there, and try to solve medium and hard level questions for those 10 days. And to be honest, it is not just for 10 days ना, I believe कि जो DIS है आपके नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है उसमें भी काफ़ी काम आता है। एज अ बैकएंड इंजीनियर मेरे को ये रियलाइज हुआ है, तो आई यूज टू प्रैक्टिस दैम लाइक अभी भी कभी कभी मन करता है तो आई यूज टू सॉल्व लाइक चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, तो वो वहाँ पे काफ़ी काम आया। गॉट इट, गॉट इट। सो बेसिकली आपने मीडियम और हार्ड लेवल के डीएसए के क्वेश्चन ही किए थे ओनली ऑन लीड कोड और सम अदर प्लेटफॉर्म्स? ओनली ऑन लीड कोड। आई थिंक आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आते जाते हैं, सो कंफ्यूजिंग काफ़ी हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं, बट आई थिंक हमें जितना सिंपल हो सकता है उतना रखना चाहिए प्रिपरेशन को। राइट, जितना सिंपल और जितना व्हाट टू से चैनलाइज्ड, राइट, बिकॉज 10 जगह से पढ़ के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। इट्स बेटर टू लाइक गेट द एग्जैक्ट वे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, एग्जैक्ट सिलेबस, एंड यू शुड नो कि पैटर्न किस तरीके से आने वाला है आपके जो भी इंटरव्यूज होने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करो फॉलोइंग वन रिसोर्स, दैट इज मोर दैन सफिशिएंट। एग्जैक्टली। एंड आई कैन से ये मेरी लर्निंग का भी पार्ट था कि इनिशियली व्हाट आई यूज्ड टू डू रॉन्ग इज कि आई वाज फोकसिंग कि मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो विच इज़ रॉन्ग फॉर द प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो आप जब भी आप प्रिपेयर करते हो ना, यू हैव टू फिगर आउट कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन नंबर यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी, कि मैं सब कुछ कवर कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा व्हाइल दे प्रिपेयर। राइट, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स डजंट मैटर, Right. वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम मैटर्स कि आपने कितने टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करी है। उससे क्या होगा ना, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स गेट डेवलप्ड, एंड व्हेन यू सी अ न्यू सेट ऑफ, बिकॉज नो मैटर हाउ मेनी प्रॉब्लम्स यू हैव सॉल्व्ड, द सेम प्रॉब्लम इज नॉट गोना कम इन योर इंटरव्यू। राइट, इट्स जस्ट दैट इट बिल्ड्स योर माइंड सेट कि आप किस तरीके से एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। राइट। सो बेसिकली अनंत, आपने क्या क्या स्किल सेट और क्या क्या प्रोजेक्ट्स अपने रिज्यूमे में मेंशन करा था विच हेल्प्ड यू लाइक विच वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर गूगल? ओके, सो जनरली जो कॉलेज लेवल के हम लोगों के प्रोजेक्ट थे, तो इन कॉलेज हम लोगों ने लाइक आई ऑल्सो ऑर्गेनाइज हैकाथॉन एंड ऑल द स्टफ, तो उसके लिए हम लोगों ने इंटरनली वेबसाइट्स वगैरह बनाई थी, तो वो मैं लाइक रिज्यूमे में शॉर्ट लिस्ट किया था। अनदर थिंग इज मैं सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट करता था अपने लिए इज़ माई गिटहब प्रोफाइल। सो इन माई कॉलेज व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि जब भी मैं कोई भी प्रॉब्लम करता था या कुछ भी करता था, मैं उसको गिटहब पे डाल देता था, जस्ट टू शो पीपल कि ये चीज़ मेरे को आती है। सो आई यूज्ड टू हाईलाइट दैट मोस्टली, कि जिसको भी बोल रहा हूँ कि दिस इज़ द काइंड ऑफ अ प्रूफ फॉर मी कि मेरे को ये सब चीज़ें आती हैं, एंड इफ़ यू थिंक कि दिस ये सब स्किल्स आपके लाइक टीम में हेल्प कर सकती है, आपकी कंपनी में हेल्प कर सकती है, तो आई विल बी हैप्पी टू बी लाइक पार्ट ऑफ इट। तो ये आई यूज टू यूज दिस स्ट्रेटेजी कि गिटहब आई यूज्ड वेरी एफिशिएंटली आई विल से, एंड उसमें स्पेशली लाइक व्हाट मैटर्स इज कि लोगों को डीएसए वगैरह का शो करना होता है। नाउ प्रोफाइल कैन बी शेयर, लाइक आज के टाइम पे तो लीड कोड की प्रोफाइल वगैरह सब शेयर हो जाती है, तब उतना नहीं होता था बिकॉज लीड कोड तब आया था। हाँ. तो आई यूज टू डू इसकी हाँ. किसी भी प्लेटफॉर्म का करो, मैं सब कुछ अपना गिटहब पे डाल दूंगा, एंड
फिर गिटहब का लिंक सबको शेयर कर दूंगा, सो दैट पीपल ऑल्सो नो कि इसको आता है, एंड दैट इज व्हेन दे कैन गिव यू द अपॉर्चुनिटी. अगर उन पे कुछ लाइक सॉलिड पॉइंट ही नहीं होगा अपॉर्चुनिटी देने का, तो दे कैन बी लाइक इन डबल माइंडेड, तो वहाँ पे आप लूज कर सकते हो. राइट, डेफिनेटली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर तो होना ही चाहिए, राइट. स्पेशली इफ यू आर अप्लाइंग टू बिग टेक कंपनीज, तो देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. तो अगर मैं इसे कॉन्क्रीटली पूछूं कि आपको एग्जैक्टली प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगा था, सो कैन यू टेल मी अ टाइमलाइन? आई विल से कि एग्जैक्टली, बिकॉज इसमें काफ़ी बेस इंपॉर्टेंट होता है आपका, जैसे बन जाता है जो लाइक मेरा कॉलेज में बना, बट जनरली आई विल से लाइक 3 to 6 months if you are like studying in a very channelized way, so I think 3 to 6 months is like good enough to be like to start giving the interview. I can also share one strategy which I used to take, क्योंकि प्रॉब्लम है कि पीपल यूज टू डू कि एक ही क्वेश्चन में अगर नहीं हो रहा है उनसे, तो दे यूज टू स्पेंड 1 day 2 day कि फिगर आउट करने में कि कैसे करते हैं. बट व्हाट आई यूज टू डू इज कि मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन होता था, आई यूज टू टाइम बाउंड देम कि 1 hour और मैक्सिमम 2 hour में आई हैव टू कंप्लीट इट. अगर नहीं होता था, व्हाट आई यूज टू डू इज कि मैं लोगों के सॉल्यूशंस जाके देखता था कि लोगों ने करा कैसे, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. फिर 1 hour के उसको रखता था कि 1 hour में मैं समझूंगा कि लोगों ने कैसे किया है. एंड फॉर मी लीड कोड डिस्कशन फोरम वाज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें लोग काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते थे. देन यू गॉट टू नो कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो आपको करना कैसे है. एंड मेन थिंग इज कि आपको वो रटना नहीं है, आपको समझना है कि वो थॉट आया कैसे, वो मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये स्टार्ट कैसे हुआ, जो प्रॉपर लाइक थॉट प्रोसेस होता है. देन आई यूज टू कम बैक एंड राइट कोड माई सेल्फ कि पहले समझा सॉल्यूशन से. मैं कोड कभी नहीं पढ़ता था, लाइक पढ़ के लिखता नहीं था, इट्स लाइक कोड से समझता था कि क्या एल्गोरिथम है और कैसे हुआ है. एंड देन आई कम बैक एंड आई ट्राई टू कोड इट माई सेल्फ. एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट like helpful strategy for me. Okay, so like what was exactly the interview process of Google? Okay, for me it was I think 4 round of DSA and 1 round of Googliness. So DSA again you will get like 45 minutes of interview, and in that like in 40 minutes you will get 1 or 2 questions to solve depending upon the interviewer or the level of difficulty. So like 4 rounds के DSA था proper. एंड लास्ट राउंड इज Googliness एंड लीडरशिप. इट्स अबाउट कि आपका पहले का एक्सपीरियंस कैसा था, एंड व्हाट आर द लाइक बेसिकली दे जज ऑन द बिहेवियरल साइड ऑफ यू. या एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज वन ऑफ द लाइक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू फॉर द गूगल. अगर आप अच्छा DSA भी देते हो, तो अगर आप इस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, इट कैन बी लाइक वेरी गो एज अ नेगेटिव इन योर. सो ये जो DSA के चारों राउंड्स हुए थे आपके, उसमें सारे राउंड्स 40 मिनट्स के हुए थे? Yeah, it is 45 minutes of interview, जिसमें 40 minutes you try to solve and they give 4 to 5 minutes to like discuss anything or for the introduction part. Got it. So हर round में there was one question or 2 questions? So it completely depend upon the interviewer. कभी वो like अगर उसकी difficulty like hard है और medium hard kind of stuff है, तो उसका like it's only 1 question, but it sometimes what I mean, कुछ इंटरव्यूअर जो होते हैं वो easy से स्टार्ट करते हैं and then they move it to like medium one. तो it varies. I think in 2 interviews I got 2 to 3 questions in fact, or in one like couple of interviews I got only 1 question. Got it. So अनंत, टेलीफोनिक स्क्रीनिंग या आई वुड से रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग से लेकर आपका ऑफर लेटर तक टोटल कितना टाइम लगा था आपके थ्रू आउट द प्रोसेस? यहाँ पे काफ़ी लकी रहा हूँ, बिकॉज वॉट आई वर्ड इज 5-6 महीने भी लग जाते हैं, बट विद इन 1.5 मंथ मेरे का सब कुछ हो गया था. लाइक मेरा स्टार्ट लाइक HR से कॉल भी आया था, एंड देन फिर मेरा इंटरव्यू भी स्केड्यूल हो गए थे, एंड देन सब ऑफर लेटर भी आ गया था. सो विद इन 1.5 मंथ एवरीथिंग वाज डन. एंड इट्स लाइक थोड़ा डिफरेंट स्टोरी भी है. एंड सो जो इससे प्रीवियस कंपनी थी Helpshift, I like resigned it before getting the like offer letter. So oh my god, okay. It wasn't like the confidence, it was like I was going through like some neck pain and all this stuff. I decided to quit, and I don't know कि मेरे को Google का offer letter आएगा भी नहीं आएगा, and luckily I got the letter. That happens when you have confidence on yourself. फिर तो फर्क नहीं पड़ता. और of course preparation पे confidence है, interviews अच्छे गए हैं और पता है कि हो जाएगा, तो फिर तो ठीक है. So in this journey between your switch
or I would say leaving the job and till Google, did you give any other interviews also? Did you face any rejections, or just Google was the target and you directly hit it to the target? So like जब मेरा गूगल का हुआ था तब तो और कोई नहीं दिया था, एंड जब गूगल का हो गया था तब उसके बाद नहीं दिया था, बट आई हैव गिवन सो मेनी इंटरव्यूज एंड लाइक फेसेस सो मेनी रिजेक्शन. तो वो मैं पार्ट ऑफ लर्निंग ही रखता हूँ. मैं कभी ऐसा नहीं लाइक डिसहार्टेंड नहीं होता था कि रिजेक्ट हो गया या क्या हो गया. सो मैंने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, लाइक स्ट्राइप सबके इंटरव्यूज दिए हुए हैं, एंड आप लाइक रह जाते हो. द वन थिंग आई यूज्ड टू फोकस इन कि जब भी रिजेक्शन आता था I follow back with the HR कि problem क्या है, and took the learning की so that I can improve that well. So in the college I got the opportunity from Singapore Stripe Singapore, and it's a very good company. Yeah. So and especially in when I was in college, so it was like dream come true वाला scene था वो. But I gave 2 interviews, दोनों DS से based थे, तो दोनों clear हो गया, but third वाला मेरा रह गया. So उस टाइम लगता है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी आपके कॉलेज में, देन रह गई. सो फ्रॉम दैट पॉइंट आई रियलाइज कि बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए. देन मैंने फीडबैक लिया, मेरे को पता चला कि जो मेरा क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था मैंने, बट जो थिंकिंग आउट लाउड वाला पार्ट था, इट वाजंट वेरी क्लियर. Because of that I got rejection. So coming to the end of the podcast, Anand, there are a lot of students who are doing BCA right now and they get demotivated कि बहुत सारी companies तो as an eligibility criteria BCA वालों को हटा देती हैं, and it's difficult to find job for people who are doing BCA. So any specific advice that you want to give to the students? So I will suggest कि बहुत सारी companies हैं, don't focus on any one company. स्टार्टिंग में आप लाइक प्रॉब्लम फेस कर सकते हो टू गेट शॉर्टलिस्टेड और टू गेट द इंटरव्यू, बट उसको लाइक एज अ डीमोटिवेशन फैक्टर मत लो. बहुत ज़्यादा कंपनीज है आज के टाइम पे, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो स्टार्टअप्स होते हैं स्पेशली, दे डोंट केयर अबाउट योर डिग्री. तो आई विल से लाइक गिव 2-3 years टू लर्न अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑल द स्टफ. किसी भी कंपनी में अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको वर्क वाइज, गो विद दैट, and then you can focus on your dream company. So I will say कि after 2 years ना, it will get comparatively much easy to get into any of the companies you want. So हमेशा वो ध्यान रखना चाहिए. एंड ऐसा नहीं है कि आपको फिर स्टार्टिंग में ट्राई भी नहीं करता. आज के टाइम पे लाइक पीपल ऑल्सो गेट इनटू द बिग कंपनी फ्रॉम द स्टार्टिंग, बट टू थिंग इज वन, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यूज, एंड सेकेंड इज कि बहुत ज़्यादा लाइक सक्सेस रेट इज़ वेरी लेस to get the interviews or to get shortlisted in the starting. So don't get disheartened from that. So just try as much as possible. One more thing is don't rely on colleges. So like colleges BC especially, like मेरा कॉलेज में सिर्फ BCA होता था, तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आती थी जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल हो. So don't think about कि कॉलेज will help you there. तो वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि just prepare yourself and go out like wild. जो भी आपको कंपनीज जहाँ भी मिल रहा है अप्लाई करो and give the interviews as much as possible. So Anant, it was amazing to talk to you. I hope guys आपको पॉडकास्ट में मज़ा आया होगा and काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा अनंत से. अनंत का जो लिंक्डइन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो इफ़ यू वांट यू कैन गेट कनेक्टेड विथ हिम. बाकी अगर पॉडकास्ट अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ. थैंक यू सो मच अनंत फॉर कमिंग ऑन माई चैनल. Sure. Thank you Shivangi for like inviting me here.